37वें स्थापना दिवस समारोह में आप सभी का स्वागत है। अपार हर्ष व परम सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे संस्थान में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पधारने की कृपा की है, वे हमारे बीच हैं। मैं संस्थान की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का भावपूर्ण स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे समारोह की शोभा बढ़ाने हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा, वित्त एवं संसदीय कार्य उत्तर प्रदेश सरकार श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त माननीय संदीप सिंह जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार एवं संस्थान के अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, महानिदेशक ICMR नई दिल्ली प्रोफेसर बलराम भार्गव जी, जो कि परोक्ष रूप से समारोह में उपस्थित हैं और जूम तकनीक द्वारा नई दिल्ली से हमारे साथ संबद्ध हैं, एवं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश गुरु जी। आप सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। बिना किसी औपचारिक परंपरा के बहुत ही सादगी पूर्वक मैं कार्यक्रम का आरंभ करती हूँ। सर्वप्रथम मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित कर रही हूँ संस्थान के निदेशक प्रोफेसर RK धीमल जी को। आज के स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय मंत्री चिकित्सा, वित्त एवं संसदीय कार्य, श्री संदीप कुमार सिंह जी अभी आने वाले हैं, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त, डॉक्टर बलराम भार्गव महानिदेशक ICMR नई दिल्ली एवं स्थापना दिवस के वक्ता, श्री राजेंद्र कुमारी तिवारी जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, डॉक्टर रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, डॉक्टर SK मिश्रा, संकायाध्यक्ष SGPGI, समारोह में उपस्थित समस्त संकाय सदस्य, छात्रगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा उपस्थित भाइयों बहनों एवं पत्रकार बंधुओं, आप सबका इस समारोह में हार्दिक स्वागत है। I welcome you all to the 37th Foundation Day of SGPGI. The Institute has come a long way and has made its presence felt in all spheres of the patient care, teaching, training and research both at the national as well as the international levels. In the current time when our state and the whole world is grappling with the COVID-19 pandemic, SGPGI has been at the forefront of providing high quality care of the COVID patients. The Institute is striving hard to grow further, and in 2019 and 20 we have added new dimension to the services provided, some of which I would like to present now. SGPGI, as well as all know, is academic medical institute with tertiary care facilities for the patients of the Uttar Pradesh and rest of the country. The institute has been adjudged third best government institution after AIIMS New Delhi and the PGI Chandigarh. Institute has provided Medicare care to an ever increasing number of the patients in the pre-COVID times. Each year in the recent past, we have served 7.3 more new OPD registration than the previous years. A new 134-bed ward block was created in 2019 to accommodate more indoor patients. In the 27 operation theaters that we have performed over 13,736 major surgical operations last year, including robotic surgery, minimally invasive surgeries, and solid organ transplants. Coming to 2020, the world changed and so did we. COVID, as we all know, has engulfed the entire globe, causing widespread damage to the mankind physically, socially, as well as economically. However, despite being the most populous state in the country, Uttar Pradesh has been able to keep the disease in check, much better compared to other states in the nation. This has been largely possible due to the exemplary handling of the pandemic by the government of the Uttar Pradesh with its scientific approach, far-sighted policies, and their strict implementation under the dynamic leadership of Iron Man of the modern India, our dear Mukhyamantri ji, Shri Yogi Adityanath ji.
This state-of-the-art Rajdhani COVID hospital, which was created in the shortest possible time, has 318 beds, of which 86% are ICU and HDU beds, fully equipped with the ventilators. The entire workforce of the SGPGI has joined hands and rallied behind me to successfully run the RCH since April. I take this opportunity to sincerely thank all of them, my colleagues. The Department of the Microbiology performed 7,748 RT-PCR tests in a single day and so far processed over 6 lakh samples. Nearly 2,300 COVID patients to date have been admitted in the RCH and discharged with the excellent outcomes. The Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji also took a path-breaking initiative of expanding telehealth facilities for the patient care. Through the ECHO, that is, Extension for the Community Health and Outcomes platform, our core intensive care and emergency teams started interacting COVID teaching and the training virtually, connecting 52 state medical colleges. Thus far, over 75 such sessions have been carried out, in which nearly 25,000 healthcare workers of these medical colleges have been trained. Also, EOPD was set up within the SGPGI to minimize travel exposure of the patient who come far from places for the follow-up. The ECCS services were started on the 1st of May 2020 with faculty from 22 clinical departments of the SGPGI, and a total of 40,000 consultations have been given to date. In short, I can confidently say that our COVID patients have received standard of the care treatment at par with some of the finest facilities in the world. And once again, I would like to say that this all has been possible only because of the unflinching support from the government and untiring effects of the dedicated staff of this institute. On the training front, apart from the courses already running, some new DM, MCH, postdoctoral certificate courses, postdoctoral fellowships, MC programs have been started. On research front, apart from the ongoing research projects, some new extramural grants have been awarded to the faculty. A total of 20 crores extramural grants have been received this year only. An increase in amount of the intramural grants up to 25 or 30 crores have been suggested to give a boost to the research at this institute in the coming financial year and the vision for the next 5 years. The upcoming emergency department building along with the renal transplant complex is being designed to provide emergency services and the state-of-the-art care to the patient with the kidney diseases, including boost to the kidney transplantation at the moment up to the 300 per year. It will also operate in hub-spoke model with the aim of the upgrading the emergency care in other medical colleges in the state of the UP. The emergency medical services will include air ambulance services for quick transfer of the trauma and critically ill patients from the field to the emergency of the SGPGR. This will prove to be life-saving in this touch and go situations. SGPGI is now committed towards the national and the state organ and tissue transplant organization programs. With the expansion of the emergency and the trauma care services, we hope to increase cadaveric donations and therefore uplift the transplant program. Currently, we have an active renal transplant program wherein nearly 3,200 transplants have been performed at SGPGI to date. Bone marrow transplantation is very active and the department will celebrate its 100th BMT shortly, and the stem cell transplantation program is also underway. The institute has started a dedicated department of the hepatology. This department will provide much needed recipient support and the close transplant care to the liver transplant unit and thus rejuvenate the liver transplantation in SGPGI. We are also looking at the lung and heart transplants and hope that air ambulance and helipad services, when started, will give it a necessary boost. SGPGI will soon have an advanced diabetic center for the comprehensive care of the patients with the diabetes.
The center will have an open door policy for all patients needing diabetes related care in any form. On this important day, a memorandum of understanding between the Power Grid Corporation of the India and Limited, the representatives are present here, and SGPGI is being signed for the creation of the tele ICU. This will be based on the hub and spoke model, with the hub being the SGPGI and the spokes being the 6 medical colleges to provide the much needed fill up to the quality ICU care in the state of the Uttar Pradesh. Power Grid under this memorandum of understanding will provide approximately 7 crores for establishing this tele ICU services at SGPGI. I am thankful to Dr. Sunil Mehra for initiating and facilitating the whole process as well. Finally, to conclude, it has been one of the most challenging years that mankind has faced in this country. However, today there appears to be light at the end of the tunnel. With the prospects of the availability of the COVID vaccines very soon. As a director, in the 10 months that I have served here, I could not have run this institute alone, especially in these trying times. It is with pleasure and pride that I acknowledge the contribution of all my colleagues, the staff and employees who with their untiring dedication and hard work have helped me with the onerous task of the steering this ship. मैं संस्थान की इंस्टीट्यूट बॉडी, गवर्निंग बॉडी, एकेडमिक बोर्ड, फाइनेंस कमेटी एवं हॉस्पिटल बोर्ड के सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिनके मार्गदर्शन से संस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने में मदद मिलती रही है एवं आशा है कि भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। समारोह में भाग लेने के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। अब मैं आग्रह करूंगी हमारे संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर एस.के. मिश्रा जी से कि वे स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर हमारे आज के वक्ता प्रोफेसर बलराम भार्गव जी का संक्षिप्त परिचय देने का कष्ट करें। प्रोफेसर बलराम भार्गव जी आज परोक्ष रूप से हमारे साथ हैं एवं जूम तकनीक के द्वारा अपना व्याख्यान देने को प्रस्तुत होंगे। Dr. Balaram Bhargav, currently the Director General of Indian Council of Medical Research, come Secretary, Department of Health Research, Minister of Health and Family Welfare, Government of India. Dr. Bhargav was born in Lucknow in 21st July 1961. He is an outstanding cardiologist, one of the foremost leaders in biomedical innovation, public health, medical education, and medical research. He directs the School of International Biodesign at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, an interdisciplinary program to foster innovation and design of low-cost implants and devices, which has led to more than 30 patents on low-cost medical devices and a dozen startups. He developed the indigenous platinum iridium coil coronary stent and has been instrumental in clinically evaluating and establishing medicated Indian stents. He is an innovator par excellence, with innovations touching everyday lives with very huge social impact, for which he has started the Society of Less Investigative Medicine, SLIM. He is currently disease prevention, early detection and transport systems for sick cardiac patients, Mission Delhi, which stands for Delhi Emergency Life Heart Attack Initiative, by trained motorcycle fast response medical paramedics. Professor Bhargav has been awarded the S.N. Bose Centenary Award by the Indian National Science Congress, the National Academy of Science Platinum Jubilee Award, the Tata Innovation Fellowship, the Ranbaxy Award, O.P. Bhasin Award, Basbik Award, and more recently the UNESCO Equatorial Guinea Prix Life Sciences. Dr. Lee Jong-Wook Memorial Prize for Public Health 2009 by WHO Headquarters Geneva. He is also a recipient of the Padma Shri Award. With that, I present to you our today's orator, Dr. Balaram Bhargav. Thank you, Dr. Mishra, for your very kind words. Honorable Shri Yogi Adityanath ji, Chief Minister of the largest and the most populous state of India, the Director of the SGPGI, senior bureaucrats, senior ministers, ladies and gentlemen. I will be talking a little bit about the COVID pandemic and India's fight at the COVID pandemic and how India has done better than many countries
and why we have done better than many countries, and what has been the role of ICMR right from before the lockdown to during the lockdown, after the lockdown. And I will try to cover this all in 12 to 14 minutes. I'll start sharing my screen. So why COVID-19 pandemic in 2020? This century has witnessed several infections like SARS, MERS, Zika, Nipah. It is only because of the change in environment and ecology, rapid urbanization, extreme connectivity, people have been traveling to and fro, neglected public health spending, inadequate spending on health. And that is probably the most important lesson that we have learned from this pandemic, that public health spending has to be increased. And this has been brought out at the parliamentary committees, at the 15th Finance Commission, and also at the group of ministers, that the GDP on health spending as well as health research spending has to be increased to 2.5% of the GDP from 1%. This may happen maybe by the 75th year of our independence, but the initial target was up to 2025. So that will make a tremendous difference in our healthcare. Why we have done well in this pandemic? Because India is the largest democracy with respect to people's voices to recalibrate its interventions. It has been serious right from the beginning. From January 8th, we've constituted the Joint Monitoring Group, and since then, we haven't stopped even a single day. The Prime Minister created empowered groups, 11 empowered groups. The Cabinet Secretary took meetings every second day with all the secretaries, and it was a whole of government approach, calibrated, proactive, preempted, and a very graded response, which was science-driven with best practices and evidence-based. Most importantly, at the national level, we had a very strong leadership with excellent communication with all the states. There were meetings with chief ministers every 2 to 3 weeks. We continued with the 5T strategy of test, track, trace, technology, and treat. And we resisted the concept of herd immunity. We never believed in herd immunity, and we never faced the consequences of herd immunity, which countries like Sweden, United Kingdom, many parts of USA also faced when they started talking of herd immunity. So we have resisted that concept right from January, February till today. Now I will talk a little bit about testing, then a little bit about vaccine and some more. In terms of testing, in February, we had more than 6,000 Shia Kargil pilgrims stranded in Iran. 6-member team of ICMR was sent to set up a lab in Tehran. They tested 2,000 people, 15% positive from 5 cities in Iran. Special flights were arranged by Indian Air Force to repatriate these people from Iran, take them to Hindon Air Force Base, and then to Kargil, and also get people from Wuhan and Italy. These were all special flights of Indian Air Force that were working from February, March onwards. This is the NIV lab that was established in the embassy of the Tehran. Our concept was to establish a laboratory in every district. We had 14 mentoring institutes, and SGPGI was one of the mentoring institutes which helped us set up labs in different parts of the country. All state medical colleges and private medical colleges set up laboratories. So 650 out of 739 districts had laboratories, and we had labs in difficult terrains, in Northeast, in all the states of Northeast, in Kargil, in Ladakh, in Andaman Nicobar, and all the various difficult to reach areas. The vision was to set up a laboratory in every district. First phase was RT-PCR lab, but the second phase at the district level, we set up the molecular lab, which I will talk a little bit about, the TrueNat. And phase 3 was the rapid antigen test, which was the first time used in India in the month of June, and WHO pre-qualification happened in September, October. So we started using the rapid antigen test much earlier. We repurposed the TrueNat. The TrueNat is the platform for tuberculosis diagnosis. Because we have this platform, which was made in India, pre-qualified by the WHO, tested by ICMR in various multi-country trials, published in Lancet, which clearly showed that this platform works for tuberculosis. We repurposed it in 2018-19 for Nipah, first time in the world. We also repurposed it for leptospirosis, first time in the world. And now we have used it for COVID-19 diagnosis. This is a point of care molecular test. We have 2530 true labs in the country, 1,008 sites in 530 districts. This lab we started in March, April, and we have tested more than 5% of the tests by this TrueNat platform. This
a similar molecular diagnostic test was established in the United Kingdom in the month of October called DNA Nudge, and they have just set up a few laboratories with this lab. But we were far ahead. We had this laboratory in the suitcase, and this was WHO approved, and we've been using this. We set up high throughput laboratories at various parts of the country, north, south, east, west, central, and we set up an assembly line of 12 RT-PCR machines at the NICPR Noida with a capacity of 15,000 tests per day. More recently, we set up the mobile testing laboratory in collaboration with Spice Health and ICMR, which is inaugurated by Honorable Home Minister, and which has a testing capacity of 2,000 tests per day. And now 5 are there in Delhi, in Chhatarpur, Rajouri, Rohini, Dwarka, Azadpur, already functional. We started in the March and April. There was shortage of kits. It was a seller's market. China was telling them for very, very high price. And they're saying, if you don't want to buy, I'll give it to some other country. Gradually, all our science ministries, all our startups started setting up these VTMs, RNA extraction kits, and rapid antibody kits. And at the time in March, the price was 1,150 rupees for RT-PCR kit, 320 rupees for VTM, and 320 for RNA extraction. Today, it is 138 rupees, 91 rupees, and 94 rupees. So total test is around 320 rupees. This has gradually come down with the competition by more than 1,000 products have been validated, and these have been validated by all our ICMR centers. Most important was this mission Lifeline Udan. During the lockdown, from 24th March to 31st May and 4 phases of the lockdown, the ICMR did not sleep. There was 24/7 Ministry of Civil Aviation, Indian Air Force, Government of India implemented a special mission for 24/7 carrying of consumables, testing commodities, medical supplies to various parts of the countries. Special flights were commissioned even at 2 o'clock in the night for testing commodities in various parts of the country. We have been number 2 in the world in number of testing, and today we have tested more than 15 crore tests. We have had a very calibrated testing strategy. Initially, we were just testing travelers in February, and then in March, April, TrueNat, then we started testing travelers, healthcare, SARI, iLiper, and pool testing. And in June, we had the antigen testing. Then we started doing pre-surgery, hospitalized patients, immunocompromised. And in September, it was testing on demand, and we could get testing done anywhere. We had 20 ICMR depots for seamless distribution, designated 30 QC/QR labs all across the country, which were able to dispatch and suggest dispatch quantities. We had a data entry portal which was looking at disease trends, policy making, resource planning, clinical decision making. All the data of all these 15,000 samples is available with us, and we are looking at various data from that. We have done the capacity assessment, matching procurements, including tendering, ordering, projections. All has been done. And more recently, we have in March, April, we also created the National Task Force, which was informed to the Supreme Court, which was responsible for calibration of testing strategy, advising the government on lockdown containment strategies, develop advisories for discharge policies, oversight on ongoing research, recommend clinical trials, develop clinical management protocols, and we have published 3 issues of the Indian Journal of Medical Research, and the 4th issue is also ongoing, dedicated purely to COVID-19. Hyperimmune globulin, like the ATS, we've developed this by giving the virus to biological events, and this has been able to develop the hyperimmune serum, which we are now going to test in humans. Human monoclonal antibodies were developed by blood samples which were collected by our ICGB, ICMR, and Emory vaccine and DBT, and this has now reached its furthest testing strategy. Convalescent plasma, the largest trial in the world, largest randomized trial. Only 3 randomized trials have really shown benefit in this COVID across the world. One was the dexamethasone trial from the United Kingdom, which showed that steroids work. Second was the Solidarity trial from WHO, which showed that many antivirals, interferon, remdesivir, do not work. And this was the convalescent plasma trial, again from India, which we democratized research, and we did 40 hospitals across the country with 464 patients during the lockdown. And from April 20th to July 20th, we recruited 464 patients, largest, which was published in the British Medical Journal with 2 editorials and a BMJ opinion, clearly showing that convalescent plasma does not work in moderate to severe patients. This was a WHO Solidarity trial. 10% of the patients of this were from India, and that was led by ICMR. We also did a genetic evolution, that there is no mutation occurring. Different clades have less than 1% divergence in the genetic front, though, so none of the mutations have culminated to change in the pathogenicity.
transmissibility or the virulence of this virus. We developed the first indigenous ELISA kit, and that was used for the national serosurvey. The first serosurvey was done during the lockdown in April, May. The second was done in August, September, and the third has just started this week and should be completed by the end of this month. It showed 0.7% prevalence and then 7% prevalence, and they have all been published. We did the sewage serosurveillance of the polio viruses in Mumbai and demonstrated in the sewage in the month of March, April, we demonstrated this virus was present. In terms of vaccine research and development, the effort started very early in the response to the pandemic. We were the 5th country in the world to isolate the virus, and this virus led to the development of the indigenous vaccine, indigenous ELISA kits, hyperimmunes, Horsira, monoclonals, polyclonals, and also for screening of antivirals. India is a world's major vaccine hub with 19 companies and 24 manufacturing facilities supplying more than 60% of the vaccines to the developing world, and India accounts for 1/4 of the global manufacturing facilities. We have India-invented vaccine, which is the Bharat Biotech, which Indian Council of Medical Research gave the inactivated virus and did most of the studies for them. The Zydus Cadila, which is the DNA vaccine, ICMR and DBT partnered, and the foreign vaccine, which is the Serum Institute, where we did the clinical trial for them, and also the Reddy's Laboratories, Biological E, and the Sputnik. We know that the vaccine development requires preclinical study, preclinical, small animals, large animals, phase 1, phase 2, and before phase 2 or phase 3, we can get emergency use authorization, and many of these companies have now applied for this. For this private-public partnership of ICMR and Bharat Biotech, we have done the animal studies, the mouse, the rabbits, the rats, the monkeys, the hamster studies, and they have been published in Cell and Nature Communication. And the phase 1 is published in Lancet Infectious Diseases. Phase 2 is in Lancet Infectious Diseases under review, and the protocol of phase 3 is in the BMJ. This was the safety study of mice, rabbits, right up to day 28, hamster study right up to day 65. And the most interesting part was the non-human primate study, where we had to do this study on monkeys. We had to capture the monkeys after getting necessary permissions during the lockdown in April, May. We tested those monkeys for any disease, tuberculosis, purchased X-ray machines. Then we challenged those monkeys, gave them the vaccine. Then we challenged those monkeys by bronchoscopy, giving them the virus by bronchoscopy, by trained specialists who were flown from Delhi to Pune to do this work in the BSL-4 laboratory of Pune. And then the bronchoalveolar lavage was collected every day by bronchoscopy, and this has been accepted in Nature Communications as one of the largest study on non-human primates and monkeys, and demonstrated that this vaccine is working. The clinical trials, phase 1, phase 2 have been completed. 104 days of phase 1 is available with no serious adverse effects. On 375 participants, phase 2, 380 participants, no serious adverse effect, and phase 3, 8,000 patients have been recruited, and we have to do 26,000 patients. We also tested the BCG trial in BCG in elderly and showed a good immune response in elderly above the age of 60 to 80 years. We have the world's largest immunization program with 27 newborn vaccinated every year, 30 million pregnancies every year, 100 million vaccinated, with 27,000 vaccine storage facilities, 62% immunization coverage, 650 million doses per year. So we are well prepared for the immunization program with a CoVIN digital platform for vaccine delivery, and we should be able to get, as soon as we get emergency use authorization, start the vaccination of up to 30 crore of our population by the month of June, July. We have had partnerships with the DBT, DST for antiviral screening and for validation of textiles, products, mobile applications, Ayush, testing laboratories, biorepositories, indigenous diagnostics, and we've had the Cabinet Secretary and the empowered groups and the National Task Force work with the state governments, Drug Controller General, National Accreditation Board, Emergency Medical Receipt Fund, NCDC, and the National Information Center. And we have been able to tackle this pandemic. And up till now, we hope the positive percentage is less than 3%, 3 to 4% in the country. And hopefully with the efforts of social distancing, usage of masks and hand washing, and the use of these newer techniques and vaccines, we should be able to win this pandemic. Thank you so much for your attention. Thank you, sir. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के 37वें स्थापना दिवस समारोह में आज के
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष तथा जनप्रिय नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे साथी मंत्री श्री संदीप कुमार सिंह जी, राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा एवं वित्त डॉक्टर बलराम भार्गव जी, महानिदेशक ICMR नई दिल्ली, जो हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं, श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, डॉक्टर रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, डॉक्टर RK धीमन, निदेशक SGPGI, डॉक्टर SK मिश्रा, संकाय अध्यक्ष SGPGI, समस्त फैकल्टी मेंबर्स, छात्रगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, मुझे अत्यंत हर्ष है कि आज संस्थान के 37वें स्थापना दिवस समारोह में आप सभी के साथ मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मिल रहा है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस संस्थान के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण बराबर रखने के लिए और समय समय पर मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने हर स्तर पर इस संस्थान के बहबूदी और विकास के लिए अपने निर्देश भी दिए और हमारा मार्गदर्शन भी किया। बहनों और भाइयों, आज 37वां स्थापना दिवस है इस संस्थान का और इस जो कालखंड बीता है उसमें SGPGI ने जो ख्याति अर्जित की वो अपने आप में एक अत्यंत सराहनीय, अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है और इसके पीछे कितने लोगों की साधना, कितने लोगों का समर्पण और कितने लोगों के द्वारा आत्मीयता से उन मरीजों के साथ पेश आना है, जिसकी वजह से संस्थान की एक ख्याति बनी। अधिकृत रूप से तो एम्स नई दिल्ली और चंडीगढ़ के बाद हमारा नाम लिया जाता, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस संस्थान ने कई ऊंचाइयों को छुआ है और यहाँ के जितने भी डायरेक्टर से लेकर जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, उन सभी के मेहनत का, सभी के समर्पण भाव से कार्य करने का ये परिणाम है कि ये आज इतनी ख्याति अर्जित कर सका। आदमी की उम्र से लंबी उसकी ख्याति की उम्र होती, उसकी प्रतिष्ठा उसकी उम्र के बाद भी याद की जाती है। आदमी चला जाता है, उसके बाद उसकी ख्याति रह जाती है और मैं समझता हूं कि जितना बेहतर तरीके से यहाँ के लोगों ने हर प्रकार से सक्रियता से, संवेदनशीलता से लोगों के प्रति जो आत्मीयता का भाव प्रदर्शित किया और बेहतर रिजल्ट्स दिए, बेहतर इलाज किया, उसी का ये परिणाम है वर्तमान SGPGI की ख्याति। आज हम अपने जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस 37 वर्ष के अंतराल के बाद हमको सबसे ज्यादा इस बात के लिए सोचना चाहिए
कि इस संस्थान की प्रगति और कैसे हो और किस प्रकार से हम इसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें, क्योंकि जो कुछ हमको विरासत में मिला, जो कुछ यहाँ की परंपराएं रहीं, उसको और आगे बढ़ाने का और अधिक प्रशंसा फैकल्टी मेंबर्स की हो, चिकित्सकों की हो, हमारे सीनियर रेजिडेंट्स की हो, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोगों से और अधिक अपनी आत्मीयता से और अधिक बेहतर तरीके से उनके इलाज में सहभागी बने या उनका इलाज करें। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, पता चला कि कल यहाँ पर अनुसंधान दिवस भी मनाया गया था। ये भी अपने आप में एक मील का पत्थर है कि हम लगातार नई खोजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल हेल्थ में और मेडिकल एजुकेशन में लगातार रिसर्च होती रहती है और रिसर्च दिवस को किसी न किसी रूप में सेलिब्रेट करना, ये भी अपने आप में एक स्तुत्य कार्य है। इसके लिए मैं विशेष रूप से डॉक्टर धीमन को, जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं और पूरी रुचि के साथ, पूरी तन्मयता के साथ इस संस्थान के विकास के लिए वो समर्पित हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी कार्यशैली यहाँ पर प्रदर्शित की, यद्यपि वो यहीं के KGMU के छात्र रहे और बराबर लखनऊ से उनका जुड़ाव रहा, यद्यपि रहे चंडीगढ़ में, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आने के बाद यहाँ पर सक्रियता से काम किया, उससे ये पता चलता है कि लगातार वो इस संस्थान के प्रगति के लिए आगे भी बेहतर तरीके से काम करेंगे। आज स्थापना दिवस पर एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जब इस संस्थान का शुरुआत हो रही थी, उस समय ये कॉन्सेप्ट किया गया था कि इसमें 1800 बेड होंगे, लेकिन आज तक हम इन 1800 बेड को फंक्शनल नहीं कर पाए। आज के इस मौके पर हम अपने डायरेक्टर से विशेष रूप से अपेक्षा करेंगे कि इस दिशा में वो ज़रूर आगे कार्रवाई करें, क्योंकि ये रेफरल हॉस्पिटल है और रेफरल हॉस्पिटल में अस्पतालों से रेफर होकर जो पेशेंट्स आते हैं, उनके लिए क्योंकि ख्याति अच्छी है, इसलिए ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारा इलाज SGPGI में हो। एक मन की संतुष्टि भी मरीज के इसी में होती, इसलिए इस दिशा में भी हमारा काम होना चाहिए। साथ ही जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी को SGPGI ने बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत आत्मीयता के साथ जो यहाँ के लोगों ने अलग से कोविड हॉस्पिटल की रचना करके लोगों को जो ट्रीटमेंट दिया, लोगों को जो इलाज दिया, उसकी भी सराहना चौर है और एक अच्छी मतलब चुनौती को ठीक प्रकार से फेस भी किया और उसमें परिणाम भी दिया। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आपके डायरेक्टर को और आपकी पूरी टीम को कि जिन्होंने इस SGPGI को और अधिक विकास के पथ पर अग्रसर करने का बीड़ा उठाया है और हमारा सक्रिय सहयोग इसके साथ में रहेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कई डिपार्टमेंट्स और यहाँ पर खुलेंगे, साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसा चैलेंजिंग जॉब भी SGPGI बखूबी कर रहे हैं और अधिक बेहतर तरीके से इसको परफॉर्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स यहाँ पर संचालित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम एक बार फिर से सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से इस स्थापना दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दिया और हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा। एक बार फिर सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी को उनके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गर्व का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में वर्चुअल आईसीयू स्थापना करने की पहल की है। इसके लिए हमारे संस्थान SGPGI एवं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के बीच एक द्विपक्षीय समझौता भी किया गया है। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक एवं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के डायरेक्टर पर्सनल श्री VK सिंह जी से इस MOU का आदान प्रदान करेंगे। श्री VK सिंह जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। गत कई वर्षों से संस्थान की यह परंपरा रही है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक एवं कर्मचारी को पुरस्कृत किया जाए। इसी क्रम में इस वर्ष से बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड का भी शुभारंभ किया गया है। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे अपने कर कमलों से इन सुपात्रों को पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। नियोनेटोलॉजी विभाग से एडिशनल प्रोफेसर कीर्ति नारंग जी, रेडियोथेरेपी विभाग से एसोसिएट प्रोफेसर शगुन मिश्रा जी, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर मोहित सिंह शर्मा, सर्जिकल डिसिप्लिन से एंडोक्राइन सर्जरी प्रोफेसर गौरव अग्रवाल जी, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट एडिशनल प्रोफेसर अनंत मेहरोत्रा, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुप्रिया शर्मा, थर्ड डिसिप्लिन बेसिक साइंस एंड लैब डिसिप्लिन, इसमें प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, हेमेटोलॉजी एंड स्टेम सेल रिसर्च सेंटर, प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, हेमेटोलॉजी एंड स्टेम सेल रिसर्च सेंटर, हेमेटोलॉजी विभाग से ही एडिशनल प्रोफेसर हरिपुर रहमान साहब, एसोसिएट प्रोफेसर मॉलिक्यूलर मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी आलोक कुमार जी, एंडोक्रिनोलॉजी से असिस्टेंट प्रोफेसर मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर आलोक कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी रोहित एंथनी सिन्हा। इसी क्रम में हमारे बेस्ट DM सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर आकाश माथुर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से, बेस्ट MCH सीनियर रेजिडेंट एंडोसर्जरी डॉक्टर विक्रम S, बेस्ट MD जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर श्रुति पांडे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से, बेस्ट नर्सिंग स्टाफ मिस सरोज लता गौतम सिस्टर ग्रेड 1 एंडोक्राइन सर्जरी, बेस्ट नर्सिंग स्टाफ सिस्टर ग्रेड 2 मिस्टर निखिल CG। अपरिहार्य कारणों से मिस्टर CG उपलब्ध नहीं है, आ नहीं पाए हैं, इसलिए इनका अवार्ड जॉनी जॉर्ज साहब रिसीव करेंगे। बेस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 माइक्रोबायोलॉजी विभाग से मिस्टर VK मिश्रा जी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आज
के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा वित्त एवं संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, संस्थान के निदेशक प्यार के धीमान जी, संकाय अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी, और अभी वर्चुअली जिन्होंने कोविड-19 पर अपना एक प्रेजेंटेशन हम सब के सामने प्रस्तुत किया है, डीजी आईसीएमआर प्रोफेसर बलराम भार्गव जी, एसजीपीजीआई के सभी यहाँ पर उपस्थित सीनियर फैकल्टीज और उपस्थित इस संस्थान से जुड़े हुए सभी यहाँ के चिकित्सकगण, मैं सबसे पहले आप सबको इस संस्थान के 37 वर्ष इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और इस संस्थान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि आज एसजीपीसीआई और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने एक एमओयू पर साइन किया है, जिसमें टेलीमेडिसिन आईसीयू के लिए ₹7 करोड़ की सुविधा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन CSR फंड से एसजीपीजीआई को यहाँ प्रदान कर रहा है। मैं इसके लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को हृदय से धन्यवाद देते हुए एसजीपीजीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को सुविधा प्राप्त हो रही है, इसके लिए संस्थान को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में टेलीमेडिसिन आज की आवश्यकता है और हम लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में टेलीमेडिसिन की उपयोगिता को बहुत नजदीक से महसूस किया है। लॉकडाउन के बाद जब कोविड-19 के केसेस बढ़े तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश और 24 करोड़ लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से भी बचाना है और जो लोग कोविड-19 की चपेट में आ गए हों उन्हें बेहतर उपचार देकर के सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी है। इसके लिए हर एक जनपद में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए गए। जहां पे हमारे पास मेडिकल कॉलेज थे वहां पर मेडिकल कॉलेजेस में, जहां मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे वहां पर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को या फिर कोई एक स्टेट गवर्नमेंट की खाली बिल्डिंग थी जिसको हम लोग 300 बेडेड का कोविड हॉस्पिटल बना सकते थे, तो हम लोगों ने वहां पर एक कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया। और उस समय मैं इस बात को महसूस किया, प्रारंभिक 2 महीनों के अंदर मेरे मन में इस बात को आया कि अगर हम लोग, जब भी मैं उन हॉस्पिटल्स में फोन से बातचीत करके पूछता था क्या स्थिति है, क्योंकि हमने 3 टायर व्यवस्था की थी, हर जिले के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाए थे, मुख्यमंत्री कार्यालय भी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कार्यालय भी उन लोगों के साथ संवाद बनाएगा, प्रत्येक मरीज के साथ, प्रत्येक विशेषज्ञ के साथ, पैरामेडिक्स के साथ। वहां से जो बातें छन करके हमारे सामने आती थी उसमें महसूस होता था कि वास्तव में बहुत सारी जगह
हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं थे। तब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 3 संस्थानों को, SGPGI को, KGMU को और RML को इस बात की जिम्मेदारी दी कि एक वर्चुअल आईसीयू ये लोग प्रारंभ करें। और मुझे लगता है कि SGPGI ने जो वर्चुअल आईसीयू यहाँ से प्रारंभ किया वो बहुत सफल रहा है, क्योंकि वह प्रदेश के अधिकतर मेडिकल कॉलेजेस को हम लोगों ने इसके माध्यम से जोड़ा है। और आज प्रदेश के 6 संस्थान को टेलीमेडिसिन के साथ जोड़ने के लिए मेडिसिन की इस आईसीयू की सुविधा के साथ जोड़ने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन यहाँ पर CSR से मदद किया है। मैं इसके लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। वास्तव में किसी भी संस्थान के लिए 37 वर्ष का समय अपने को साबित करने का एक समय बड़ी एक लक्ष्य कालावधि होती है। इस अवधि में हम पता लगा सकते हैं कि संस्थान की दिशा क्या है, संस्थान कहाँ जा रहा है और संस्थान के सामने आगे का भविष्य कैसा है। और अगर कहा जाए कि 37 वर्ष SGPGI के इतिहास में बहुत गौरवशाली रहे हैं और एक नए विश्वास के साथ में प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य भी SGPGI को देखते हैं, जहां ये SGPGI से जुड़े हुए यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को, यहाँ के जो मेडिकल से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं, इन सब के लिए जहाँ ये बहुत गौरव की बात है। लेकिन वहीं हम सब के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हम कैसे निकल सकते हैं, यह भी हमारे लिए वास्तव में उसकी तैयारी के लिए हम सबको अपने आप को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। याद करना, जहां संभावना होती है लोगों की अपेक्षाएं भी वहां होती है, और जहां पर लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, वहां लोग अपेक्षा भी नहीं करते। और हमेशा जिससे अपेक्षा होती है और अगर हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं तो वही हमारे जीवन को यशस्वी बनाता है, वही हमारे जीवन को अन्य लोगों के लिए यादगार बनाता है और फिर वह यात्रा आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनती है। और यह चैलेंज आज SGPGI के पास है, क्योंकि प्रदेश के अंदर अब एम्स जैसे संस्थान आ चुके हैं। मैं हमेशा इस बात का बहुत विरोधी रहा जब SGPGI की तरफ से आता था कि हमें एम्स के समकक्ष मान्यता मिलनी चाहिए। मैं कहता था एक तो स्वयं भी इसके पास क्षमता है कि एम्स से आगे जा सकता है, लेकिन हम लोग जो एक मानसिकता हो जाती है कि नहीं हम भी उसके पीछे चलेंगे। यानी मेडिकल का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम लोग टीचिंग, ट्रीटिंग और रिसर्च के माध्यम से अपने आप को साबित कर सकते हैं, और SGPGI की स्थापना के पीछे का उद्देश्य ही यही था। SGPGI ने इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल भी की, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मानसिकता थी कि हमें भी समकक्षता चाहिए और समकक्षता के नाते हम पिछलग्गू होते हुए दिखाई दिए, मुझे लगता है उससे उभरना पड़ेगा और एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए SGPGI को खड़ा होना पड़ेगा। याद करिए, वर्ष 2020 तक आपके पास प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में SGPGI है, लेकिन 2021 में उत्तर प्रदेश में 2 नए एम्स फुल फ्लेश चालू होने वाले हैं, एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली। इसके साथ ही एम्स के समकक्ष संस्थान BHU वाराणसी भी प्रारंभ हो रहा है, और प्रदेश के अंदर अन्य संस्थान को भी विकसित करने की बड़ी कार्य योजना हम लोगों ने आगे बढ़ाई है। हम लोग जानते हैं यहां पर कार्य का लोड बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां पे इतनी संभावनाएं, उन्हीं के बीच में हमें अपनी संभावनाओं को भी आगे बढ़ाना है। वहां पे आपके लिए ट्रीटमेंट, यानी पूरा का पूरा आपका सिस्टम ही ट्रीटमेंट पर आधारित है, और ये ट्रीटिंग के माध्यम से रिसर्च को आगे बढ़ाना, इन संभावनाओं के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म SGPGI के लिए उत्तर प्रदेश उपलब्ध है।
उस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास करना और उसके लिए कार्य करना। मैं इस बात को मानता हूं कि एक सामान्य मरीज एसजीपीजीआई में नहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या मेडिकल कॉलेज से रिफर होने के बाद ही कोई पेशेंट यहां पर आता है। और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस का एक बहुत अच्छा तंत्र विकसित किया है। 1947 से लेकर के 2016-17 तक प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, और 2017 से 2020 के बीच में हम लोग वर्तमान में 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नए बना रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कितनी तेजी के साथ प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है। और ये 30 मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ हर एक जिले में हम लोग एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस उपलब्ध करा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, सीएचसी का, पीएचसी की स्ट्रेंथनिंग की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। और जिन्हें सब नहीं लगता, जिन्हें लगता है कि आज से 5 साल पहले का उत्तर प्रदेश है, उन्हें ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। और जिन्होंने नजदीक से इसे देखा है, वे लोग इस बात के लिए आश्वस्त थे कि कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई बहुत मजबूती से जीतेंगे। और जिन्हें मालूम नहीं था वे सशंकित थे, और हम भी कहते थे हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में बाल बांका नहीं होने देंगे। और हमें प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने 3-3.5 वर्षों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान दिया, आज उसका परिणाम कोविड-19 के मैनेजमेंट में हम सबको देखने को मिला। और आज उसका परिणाम ही है कि जब WHO जैसी संस्थाएं भी उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को उसकी सराहना करने से अपने को रोक नहीं पाती है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। लेकिन इसमें एक एक संस्थान ने योगदान दिया, हर एक स्तर पर, हर एक टीम ने। यहाँ पे हमारे जितने भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थे, उनमें जो भी उनके साथ जो भी चिकित्सक जुड़े थे या मेडिकल संस्थान से जुड़े हुए जो फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए थे, वे सभी तो उसमें योगदान दे ही रहे थे। लेकिन साथ साथ जो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर, जिले स्तर पर भी हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बनाए थे, वहां से भी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने स्तर पर वहां पर योगदान दिया। बहुत सारी जगह हम लोगों ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया था, क्योंकि हम लोगों ने उसके लिए पहली शर्त ये रख दी थी कि कोविड हॉस्पिटल और नॉन कोविड अलग अलग होंगे, और कोविड और नॉन कोविड को हम एक साथ नहीं रहने देंगे, एक संस्थान में, एक बिल्डिंग पे नहीं रहने देंगे। और उसका परिणाम बहुत अच्छा हमारे सामने आया और हम लोगों को उसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई। लेकिन अभी जो प्रोफेसर बलराम भार्गव कह भी रहे थे कि वैक्सीन आ रही है, लेकिन तब तक हमें कुछ सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। लेकिन उस सावधानी में हम पलायन कर जाएं, ये हम सबके लिए चिंताजनक स्थिति है। और मैंने कोविड-19 के दौरान देखा बहुत सारे लोग तो पलायन का रास्ता अपना लिए। हम लोगों को कोविड हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े कि लोग वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं देखने के लिए। थोड़ा चेक करो, पैरामेडिक्स वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सीनियर फैकल्टी वहां जा रही है कि नहीं जा रही है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये नौबत भी आई तो उसका विकल्प भी निकला। और मैं चाहूंगा कि एक अच्छा अवसर था हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, जब हेल्थ केयर के लिए हम जन विश्वास को एक बार फिर से अर्जित कर सकते थे। और जिन संस्थाओं ने अच्छा काम किया उन्होंने जन प्रतिष्ठा को और जन विश्वास को जीता है। लेकिन जहां पर कमजोर कार्य हुआ, लापरवाही हुई, वहां पे जनता ने उसी प्रकार की नेगेटिविटी उन संस्थानों के प्रति और उन लोगों के प्रति व्यक्त भी की है। क्योंकि एक एक व्यक्ति, कोविड जैसी बीमारी तो ऐसी है कि जहां पे हर व्यक्ति के पास आज के दिन पे स्मार्टफोन है, वह एक एक प्रतिक्रिया वहां से हम लोगों के पास भेजता था। और हम लोगों ने एक एक पेशेंट के साथ 3-3, 4-4 बार प्रतिदिन संवाद हम बनाते थे। और उसका परिणाम क्या होता था कि लोग एक एक जानकारी हम लोगों के पास आती थी, कैसे उन्हें भोजन मिल रहा है, उनके वार्ड में सफाई है कि नहीं है, उनके वार्ड में बेडशीट बदली जा रही कि नहीं जा रही है, वहां पैरामेडिक्स उपस्थित रहता है कि नहीं रहता है, वहां पे डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप
अगर डॉक्टर नहीं आए हैं, पैरामेडिक्स नहीं आए हैं, तो आप हमें ही नोट करा दीजिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, आपका टेम्परेचर क्या है, आप ही बता दीजिए। हम दोनों से बात करते थे, होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट से भी और जो हॉस्पिटल में है उससे भी हम लोगों का निरंतर इस प्रकार का संवाद होता था। और उसका परिणाम था कि जहां पर थोड़ी भी लापरवाही होती थी तो वहां पर शासन फिर से वहां पर पहल करके उसको दूर करने का प्रयास करता था, और उसका परिणाम हम सबके सामने अच्छे ढंग से आया। और खासतौर पर मैं धन्यवाद दूंगा एसजीपीजीआई को, जिन्होंने वर्चुअल आईसीयू को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा करके प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को एक विशेषज्ञ जो टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी थी, आईसीयू की फैसिलिटी थी, उससे लाभान्वित किया। इसका काफी बड़ा लाभ प्रदेश के बहुत जो कोमॉर्बिड पेशेंट थे उनको इसका बहुत लाभ हुआ। लेकिन अभी एक लंबी यात्रा आगे लेकर चलनी है, और याद करना कि अगर हम समय के अनुरूप नहीं चले, समय के धारा के अनुरूप अगर हम लोगों ने आज के परिप्रेक्ष्य में अपने को नहीं ढाला तो हम पिछड़ जाएंगे, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। एम्स जैसे संस्थान से आपका प्रतिस्पर्धा अब होने वाली है। तकनीक से आप सबको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, और इस दृष्टि जो आपके सामने आने वाले समय की चैलेंजेस होंगे उस दृष्टि से आप अपनी तैयारी करें। और मैं सबसे पहले तो एसजीपीजीआई से कहूंगा कि आप अपनी जनरल ओपीडी प्रारंभ करें। अब कोरोना से बहुत भयभीत मत, सावधानी और सतर्कता बरतिए। अगर डॉक्टर ही ओपीडी छोड़ करके गायब हो जाएगा तब तो फिर हमने इस मामले में रिसर्च कर दिया, तब तो हम लोग फिर इसके आगे के उपचार के लिए, और जो एक कॉमन मैन के अंदर भय है, प्राइवेट हॉस्पिटल अधिकतर अपनी जनरल ओपीडी प्रारंभ कर चुके हैं, अधिकतर क्षेत्रों में जनरल ओपीडी चल रही है। एसजीपीजीआई क्यों नहीं कर पा रहा है? केजीएमयू क्यों नहीं कर पा रहा है? आरएमएल क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर सकते हैं, ये हमें तत्काल अपनी प्रारंभ करनी पड़ेगी। दूसरा, शासन की उन योजनाओं को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और पूरी मजबूती के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे आयुष्मान भारत की योजना है, आयुष्मान भारत में भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के हर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पेशेंट को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रही है। आयुष्मान भारत की ये सुविधा उन गरीबों को हर एक को मिले। हमें ये देखना चाहिए कि एसजीपीजीआई जैसा संस्थान हर एक पेशेंट के लिए बिना भेदभाव के स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर है। यहाँ पे सिफारिश ही नहीं बल्कि कोई भी पेशेंट आएगा उसको हम बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और आयुष्मान भारत की सफलता एक गरीब पेशेंट को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा पर निर्भर करेगी, और इस दृष्टि से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यद्यपि आयुष्मान भारत में यहाँ पे लगभग 750-800 के आसपास पेशेंट को ट्रीटमेंट की सुविधा दी गई, लेकिन ये बढ़नी चाहिए और अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए। एसजीपीजीआई का ट्रॉमा सेंटर बहुत दिनों तक बहुत त्रिशंकु की तरह लटका हुआ था। केजीएमयू चलाएगा, एसजीपीजीआई चलाएगा, कोई और चलाएगा, कोई और चलाएगा। अंत मैंने कहा भी नहीं, एसजीपीजीआई उसको चलाए। एसजीपीजीआई के नजदीक एसजीपीजीआई को चलाना चाहिए। और एसजीपीजीआई ने वहां पे कोविड हॉस्पिटल बनाया, और आपने देखा होगा कोविड हॉस्पिटल से जो कोई भी कोविड हॉस्पिटल में आपके यहाँ आया वो संतुष्ट होकर के गया। उसने प्रारंभिक रूप में कुछ थोड़ी बहुत शिकायत आई होंगी, लेकिन बाद में जब वहां पर सभी सीनियर फैकल्टी जानी प्रारंभ हुई, उसके बाद ट्रॉमा सेंटर में जो कोविड हॉस्पिटल बना, उस कोविड हॉस्पिटल ने एक नई पहचान दी है। और एसजीपीजीआई की जो विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं थी उस दृष्टि से लोगों के मन में एक विश्वास इस आपदा काल के अंदर भी भरने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं चाहूंगा कि आफ्टर कोविड हमें ट्रॉमा सेंटर को फिर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे ढंग से संचालित करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे तो वह वर्तमान की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत सहायक हो सकता है जो जिसके लिए एसजीपीजीआई जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर
लेकर के अभी हमें अपने कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। खासतौर पर जो हेपेटोलॉजी विभाग में क्रियाशील करने की कार्रवाई है, या यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कार्रवाई है, लीवर ट्रांसप्लांट का है, या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा को, ये सब कार्य पीजीआई में अब तक प्रारंभ हो जाने चाहिए। पीजीआई जैसा संस्थान ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर भारत का एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है, और इसमें अगर हम पीछे रह गए, कोई नए संस्थान आगे आकर के अगर इस कार्य को, जो पहला कार्य करेगा वो इसमें लीड कर लेता है। और हमें तकनीक के साथ अपने को अपडेट करना पड़ेगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, या किसी भी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, इसकी दिशा में हमें तेजी से कदम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी टीम को इसके लिए तैयार नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाएंगे। और जो आज के दिन पर प्रदेश के अंदर पीजीआई की जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा के अनुरूप हम लोगों को इस पर कार्य करना होगा। और आज के इस अवसर पर जब पीजीआई अपने 37वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम कर रहा है, तो मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि एक एडवांस डायबिटीज सेंटर की स्थापना की दिशा में भी पीजीआई काम करेगा तो बहुत अच्छा होगा। राज्य सरकार इस दिशा में आप लोगों को सहयोग करेगा, और जहां पर कोई भी संस्थान कार्य आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता है, वहां पे दिशा ठीक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। वहां पर उसके सामने न फंड की प्रॉब्लम हो सकती है, और न उसके सामने अन्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसके सामने नहीं हो सकती है, कहीं भी किसी भी प्रकार की। मैंने इसीलिए जब विभाग का दायित्व दिया तो मैंने वित्त मंत्री को ही ये विभाग भी दिया, जिससे वित्त की कोई समस्या आपके पास न आने पाए। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के कार्य बाधित करना ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस होगी कि आप एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करके यहां से भेजें, और इसी में पीजीआई की प्रतिष्ठा है। यश और अपयश व्यक्ति के कृत्यों पर निर्भर करता है। अच्छा करेंगे, यश के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे या चैलेंज से भागेंगे तो अपयश के भागीदार बनेंगे। प्रदेश में मुझे याद है जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आयोजन था, तो जनता कर्फ्यू के बाद सायकाल मेरे पास पहले उपराष्ट्रपति जी का फिर राष्ट्रपति जी का फोन आया। दोनों ने एक ही बार में चिंता व्यक्त की। 22 मार्च को मुझे याद है शाम के समय दोनों का फोन आया। दोनों ने कहा, योगी जी कोरोना आ गया है, हम लोग यूपी के बारे में चिंतित हैं, क्या होगा यूपी का। मैंने कहा क्या समस्या है यूपी से। उन्होंने कहा हाँ, यूपी कैसे बचेगा, इतना पुअर हेल्थ सिस्टम वहां का, इतनी घनी आबादी, और हमें तो भय है कि लॉकडाउन अगर लगता है, तब तक लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन अगर बंदी होती है और लगभग 1 करोड़ के आसपास यूपी के माइग्रेंट लेबर यूपी में आएंगे, तो यूपी में आप किसी को बचा नहीं पाएंगे। और आपने देखा होगा, अगर हम भी उन लोगों की तरह भागे होते जिन्होंने सेल्फ क्वारंटीन में अपने को डाला था, तो क्या हम यूपी को बचा पाते। 25 मार्च से लेकर के आज भी आज सुबह 11 बजे से हम लोग डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन में मुझे जाना था 11 बजे से, लेकिन 11 बजे के पहले मैंने कोविड-19 की बैठक ली। यानी कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने बैठक फिजिकली, और अगर मैं लखनऊ से बाहर हूं तो मैंने वहां से वीसी के माध्यम से या फिर अन्य माध्यमों से इसकी बैठक ली है। एक एक संस्थान के बारे में, एक एक पेशेंट के बारे में, एक एक मौत के बारे में, कहां पे मौत कैसे हुई, क्या कारण है, क्या हम आगे सुविधा दे रहे हैं, इन सब के बारे में निरंतर हम लोग बैठक ले रहे हैं। और ये केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं, शुरुआत में तो आपने देखा होगा स्वास्थ्य हेल्थ की प्रॉब्लम कम, शुरुआत में तो व्यवस्था की थी, डोर स्टेप डिलीवरी कैसे हमें देना है, कैसे व्यक्ति तक हमें खाद्यान्न पहुंचाना है, कैसे हम लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर हम उन सुविधाओं को दे सके। माइग्रेंट लेबर जब आना प्रारंभ हुई तो सुरक्षित उन्हें घर तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे हम उनको सुरक्षित रखेंगे,
कैसे हम क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था का संचालन करेंगे, ये सभी चैलेंजेस थे, लेकिन हम लोगों ने प्लान का रास्ता नहीं अपनाया। हमने उस चुनौती के रूप में स्वीकार किया और सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करते हुए एक एक चुनौती आती गई और हम सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करते हुए सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते गए। और आज इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर कोविड पॉजिटिविटी में भी और CFR में भी उत्तर प्रदेश का परिणाम देश की किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर उदाहरण है। और इस देश से मैं कह सकता हूं कि टीम वर्क है, ये व्यक्ति के लिए भी और व्यवस्था के लिए भी उतना ही महत्व रखता है। इस टीम वर्क को लेकर के हम लोग बेहतर कार्य कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि SGPCI इसके लिए अपने आप को तैयार कर पाएगा तो वास्तव में न केवल संस्थान का जो यशस्वी और गौरवशाली अतीत रहा है वह उसको भविष्य में भी इसी गौरवशाली व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर किसी भी एक स्तर पर लापरवाही हुई तो स्वाभाविक रूप से उस यश के साथ हर व्यक्ति भी यश का भागीदार बनता है, संस्थान का एक एक व्यक्ति। और जब किसी संस्थान के साथ अपयश जुड़ता है तो उस अपयश का भागीदार हर एक व्यक्ति भी बनता है, टॉप टू बॉटम व्यक्ति, कोई भी उससे वंचित नहीं रह सकता है। ये हम पर निर्भर करेगा हम किस रूप में से आगे बढ़ना चाहेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि 37 वर्षों की गौरवशाली परंपरा को आप और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। SGPCI के लिए जो वर्तमान के संकल्प हैं, वर्तमान के जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए हम लोग उन नए संकल्पों के पथ पर आगे बढ़ सकें, इस विश्वास के साथ मैं 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर SGPCI की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि निश्चित ही SGPCI स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश और देश के अंदर एक नई ऊंचाइयों को छूने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। अब मैं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर RK धूमल जी से अनुरोध करूंगी कि वे संस्थान की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए निदेशक महोदय जी से मैं अनुरोध करूंगी। माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी को राज्य मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी, निदेशक महोदय से अनुरोध है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, एवं अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे जी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे जी को अंत में मैं धन्यवाद प्रस्ताव हेतु आमंत्रित करती हूँ संस्थान के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर SK मिश्रा जी को। Sri Suresh Khanna ji, Honorable Minister of Finance, Medical Education and Parliamentary Affairs, and Sri Sandeep Singh ji, Honorable Minister of State for Medical Education and Finance, have been constantly guiding us in the development of the institute, for which the institute is ever thankful to them. We are thankful to our President and Chief Secretary of Government of UP, Sri Rajendra Kumar Tiwari ji, and Dr. Rajneesh Dubey ji, Additional Chief Secretary, Department of Medical Education, who have been supporting us in executing the mandate given to us. Professor Balram Bhargava, the 37th Foundation Day Orator, who is well known to all of us for his dynamism in combating the coronavirus crisis. The oration topic aptly testifies the statement. We would like to extend him a vote of thanks for making time for us in spite of his busy, tight schedule. Today, we have reached another milestone in supporting the state health system through virtual ICU, which would not have been possible with generous grant support from the Power Grid Corporation. So we are thankful to them.
It will further strengthen our outreach healthcare system for the state of medical colleges and beyond. The media, both print and electronic, are spreading the good deeds of our institute with the public, so we remain ever grateful to them for their presence. Lastly, I would like to propose a vote of thanks to our director, faculty, residents, research scholars, and staff of the institute and the entire family of HGPGI for the blessings to make this event a success. Jai Hind. अंत में आप सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय आप सभी की गरिमामय उपस्थिति एवं सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।